Today we are going to start exercise 1.5 chapter number 1 number system class 9th. Our first question is classify the following numbers as rational or irrational. हमें ये जो पार्ट्स दे रखे हैं कुछ नंबर्स हैं इनको क्लासीफाई करना है which one is rational and which one is irrational. So let's start. Question number first, part number first is 2 minus root 5. You know that 2 is a rational number but root 5 is irrational. It means rational minus irrational. It will be irrational number. ये क्या होगा? Irrational number. Is it clear? The second question is part number second, 3 plus root 23 minus root 23. If we solve this number, so we will get 3 plus root 23 minus root 23. This is positive root 23 and this is negative root 23. So these should be cancelled. So we will get 3 upon 1. It is in the form of P upon Q. That's why it is a rational number. Rational number. Next, the third part is 2 root 7 upon 7 root 7. So we can cancel these root 7 by root 7. So we will get 2 upon 7 which is in the form of P upon Q, and those numbers are in the form of P upon Q. They are rational number. Is it clear? Next, the fourth is 1 upon 2 root 2. Root 2 is irrational. That's why 1 upon root 2 is also irrational number. And the fifth part is 2 pi. You know that pi is an irrational number. So that's why the pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi all are irrational number. Is it clear? Our second question is simplify each of the following expressions. Some expressions are given. We have to simplify these expressions. The first question is 3 plus root 3 into 2 plus root 2. We have to simplify this expression. So firstly we have to multiply this 3 by 2 plus root 2. So we can write 3 into 2 plus root 2. Now there is a positive sign, so you have to write plus here. And now we have to multiply root 3 by 2 plus root 2. So we will get root 3 into 2 plus root 2. Now 3 into 2, 3 2 just 6. 3 into root 2, 3 root 2. Plus root 3 into 2, so we can write 2 into root 3. Plus root 3 into root 2. So रूट वाले की रूट वाले से मल्टीप्लाई होती है, तो हम क्या लिख देंगे रूट 3 2 जा 6. अब देखिए ये 6 है, ये रूट 6 है, ऐड नहीं हो सकते. इसमें दे रखा रूट 2 और इसमें है रूट 3, तो ये भी ऐड नहीं हो सकते और सॉल्व हो नहीं सकता. तो ये हो गया आपका सिंप्लीफाई फॉर्म. ठीक है. सेकेंड पार्ट है हमारा. सेकेंड पार्ट 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3. देखिए एक मेथड तो ये है कि इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए, वो उससे भी हो जाएगा. दूसरा अगर आप ध्यान से देखें तो इसके फर्स्ट वाले और सेकंड वाले नंबर सेम है, बस साइन चेंज है. तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं. क्या? a माइनस बी ए प्लस बी. आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी 8th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी. क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब a के प्लेस पर यहां दे रखा है 3 और b के प्लेस पर यहां दे रखा है रूट 3. सो वी कैन राइट 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 is equals to, on the place of a you have to put 3, so 3 square minus on the place of b you have to write the value of b, that is root 3. So root 3 square, 3 square is 9 minus रूट से जब भी स्क्वायर, इस रूट का जब भी स्क्वायर होता है तो कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा 3. 9 माइनस 3 क्या हो गया? 6. ये क्या आ गया आपका आंसर. पॉज द वीडियो टू फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट. ठीक है. अब करते हैं हम थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या हमारा, इसको मैंने रब कर दिया. थर्ड पार्ट है हमारा रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर. अब इसके हैं दो मेथड. एक तो हो गया आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर.
दूसरा मेथड ये है, आपको पता है आप 2 के स्क्वायर को लिख सकते हो 2 इंटू 2। इसी तरीके से आप √5 प्लस √2 के स्क्वायर को लिख सकते हो √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2। इसको आप आपस में पहले क्वेश्चन की तरह मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, एक तरीका ये है, ठीक है। इससे आप करके देखना, मैं इससे बता देता हूं। देखिए ये आइडेंटिटी है, यू नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। So we can solve it √5 plus √2 whole square. On the place of a there is √5 and on the place of b there is √2. So here you have to put the values of a and b. The value of a is √5. So you have to write √5 square plus 2 into a √5 into b √2 plus b square means √2 square. So we can write रूट का स्क्वायर करेंगे बच्चे का 5 प्लस 2 रूट वाले के रूट वाले से मल्टीप्लाई √10 प्लस रूट से स्क्वायर कैंसिल आ गया 2। अब देखो ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, 5 और 2 कितने हो गए 7 प्लस 2 √10। अब इसके साथ रूट वाला एक नंबर है लेकिन ये अकेला है, तो दीज कैन नॉट बी एड। सो दिस इज योर आंसर। फोर्थ पार्ट आप खुद करके देखिएगा, ठीक है। Our third question is recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter। आपको पता होना चाहिए पाई क्या होता है। पाई क्या होता है? पाई होता है एक सर्कल की सर्कमफेरेंस और उसके डायामीटर का रेशियो। समझाता हूं मैं, देखिए आपको पता है सर्कमफेरेंस क्या होती है सर्कल की, वो होती है 2πr, और डायामीटर क्या होता है, वो होता है 2r, जिसे रेडियस का डबल बोलते हैं ना। तो r से r कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया पाई। तो हम कह सकते हैं डिवाइड को बोला रेशियो, तो द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड पाई। वही बात इसने लिखी है कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कल, मतलब c/d। दिस seems to contradict the fact that pi is irrational। ये इस बात का विरोध करता है कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। How will you resolve this contradiction? आप इस विरोध को या contradiction को कैसे रिजोल्व करोगे? देखिए इतना बड़ा आंसर है तो मैंने पहले ही लिख दिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि पाई तो इरेशनल है। अब पाई इक्वल टू होता है c/d। c/d तो p/q की फॉर्म में आ गया, ये रेशनल होना चाहिए था। तो याद रखिएगा कभी भी हम स्केल से या किसी और डिवाइस से मेजरमेंट करते हैं तो हमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है। तो इसलिए वहां पे इस फैक्ट का कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। वही देखा मैंने, इट डज नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल when we measure a length with a scale or any other device we only obtain an approximate rational value। हमें एक approximate rational value मिलती है but not the exact value। यही मैंने आपको अभी बात बोली। accordingly इसके अकॉर्डिंग we may not realize which one C और D is irrational। हमें ये नहीं पता चलता है कि C या D में से कौन सा irrational है, ठीक है। तो सो पाई इक्वल टू c/d क्या है, irrational नंबर है, ठीक। और आपको मैंने पाई की वैल्यू इससे पहले भी बता रखी क्या होती है, 3.1415926535 एंड सो ऑन, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सुपर कंप्यूटर की हेल्प से पाई की वैल्यू पॉइंट के 2.3 ट्रिलियन डिजिट तक निकाली जा चुकी है, ठीक है, और एंड नहीं होती। और 22/7 क्या होता है, 3.1425285171425 एंड सो ऑन, ये चलती रहती है, ठीक है। तो हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं 3.14 या फिर 22/7। देखिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या करना है, हमें √9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देंगे। कितने सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे, 9.3 सेंटीमीटर की, ठीक है। 9 ये रहा, 1 2 3, हमने क्या करा, एक 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, ठीक है। इसको हमने नेम दे दिया ए बी, ठीक। अब हम, ये कितने सेंटीमीटर की लाइन है, ये है आपकी 9.3 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि हम इसकी हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे
ठीक है। उसके बाद एक आर्क लगाएंगे अपर साइड और एक लोअर साइड, ठीक। और सेम डिस्टेंस से बी पर कंपास रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे अपर साइड एक लोअर साइड, ठीक। तो यहाँ जहाँ पे भी आर्क इंटरसेक्ट कर रही होंगी उनको हम क्या कर देंगे, एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब इसको अगर हम नेम दे दें ओ, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ओ से ए तक की कंपास में डिस्टेंस लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखो एग्जैक्टली बी पर आएगा, ठीक है। इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, कहाँ से, बी से हम 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, सॉरी एक पॉइंट लगाएंगे। हमने क्या करा, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लगा लिया, ठीक है। इस पॉइंट से सीधे एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, ठीक। ये हो जाएगा हमारा, ये इसको दे देते हैं सी और इसको नेम दे देते हैं डी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सी से डी तक की डिस्टेंस लेंगे, सी से डी तक की डिस्टेंस कंपास में लेंगे और यहाँ से एक और आर्क लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको हम इंक्रीज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ई। तो ये जो सी ई आया ये होगा आपका √9.3। मेज़र करना है, आपको पता है 9 का रूट क्या होता है, 9 का रूट होता है 3, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। चलिए मेज़र करके देख लेते हैं कि ये 3 पॉइंट समथिंग है या नहीं है। देखिए ये 3 तो यहीं आ रहा है और पॉइंट में समथिंग कुछ आ रहा है, यानी कि ये हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल करेक्ट है। Our fifth question is rationalize the denominator of the following. Some numbers are given, we have to rationalize these numbers. First of all, what is rationalization? आपको ये बात पता होना चाहिए कि rationalization होता क्या है. So listen carefully. The process of reducing a given surd into rational form after multiplying it by another surd is known as rationalization. एक ऐसा प्रोसेस जो क्या करता है, किसी भी सर्ड को, सर्ड मतलब होता है रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट को रेशनल फॉर्म में ले आता है। कैसे, किसी दूसरे सर्ड से मल्टीप्लाई करके, तो वो होता है रेशनलाइजेशन। चलिए आप देखते हैं, पहले हमारा 1/√7, कुल मिला के हमें रूट हटाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑन रेशनलाइजेशन, तो ये हो जाएगा 1/√7। इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से इस √7 की मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये जाएगा √7/√7। तो √7 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये तो आ गया √7। √7 की √7 से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है 2 × 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से √7 × √7 क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 7, ठीक है। तो देखिए डिनोमिनेटर से रूट हट गया, तो ये हो गया इसका रेशनलाइजेशन, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा थोड़ा सा अलग है। सेकंड क्या है, 1/√7 - √6 ऑन रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन हम करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन 1/√7 - √6, इसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की इससे करेंगे साइन चेंज करके, मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, तो ये जाएगा √7 + √6 अपॉन √7 + √6। इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगा, मतलब √7 + √6 अपॉन, ये बन गया a - b a + b, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वाले नंबर सेम है, साइन चेंज है। आपको पता है कि a - b a + b क्या होता है, a² - b²। अब देखिए a के प्लेस पर √7 है, b के प्लेस पर √6 है, तो ये जाएगा a² - b², यानी कि √7² - √6²। सो वी कैन राइट √7 + √6 अपॉन रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी ये बचा 7, रूट से स्क्वायर कैंसिल बचा 6,
तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास √7 प्लस √6 अपॉन 1। 7 माइनस 6 1 होता है, 1 लिखो या मत लिखो, देखिए डिनोमिनेटर से रूट हट गया, तो ये क्या हो गया इसका रेशनलाइजेशन। ठीक है, थर्ड पार्ट आप खुद करके देखना। फोर्थ पार्ट है 1/√7 माइनस 2। देखिए ऑन रेशनलाइजेशन we have to write the question 1/√7 minus 2. We have to multiply numerator and denominator by this number by changing sign. तो माइनस को प्लस बना देंगे, तो क्या हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये तो सेम आ जाएगा √7 प्लस 2, ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। फिर से लगेगी आइडेंटिटी, कौन सी, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के प्लेस पर √7, बी के प्लेस पर 2, सो वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर करेंगे, मतलब √7 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा 7, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये क्या आ गया √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 दैट इज 3। तो रूट तो हट गया डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो गया इसका आंसर। देखिए मैंने इसमें 4 पार्ट्स इंक्रीज कर दिए हैं, थर्ड पार्ट ऑलरेडी पहले ही आपने करना है, और ये 4 पार्ट्स मतलब 5 क्वेश्चंस आपने करने हैं। ठीक है, इसी के साथ और भी इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दिखेगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।